We won it. We won it again, once again. It's crazy, man. It's crazy the way Real Madrid wins. I mean, hopes were dying clearly. 90 minutes tak, I don't think so we had a single shot on target as far as I remember. काफ़ी स्ट्रगल कर रही थी रियल मैड्रिड इन टर्म्स ऑफ स्कोरिंग गोल बिकॉज ऐसा ज़्यादा होता नहीं है कि यू नो वी आर इन द बॉक्स, वी आर गेटिंग चांसेस एंड वी आरंट एबल टू स्कोर दैट. सो I don't know what to say, man. I just don't know what to say. Something out of nothing has happened today. और चेल्सी की मैचेस देखिए, आई हैव सीन PSG का मैच एज वेल, बट दिस वन हिट्स वेरी डिफरेंट बिकॉज इट वॉज ऑल ओवर. सारे होप्स वगैरह जितने भी थे, दे वर डाइंग आउट एंड 5 minutes, दैट्स ऑल इट टुक. 5 minutes सब कुछ रिजुविनेट कर दिया. I'm just flattered, man. I'm just flattered. I mean, Real Madrid का नाम हटा दो अभी. Just keep it un-Real Madrid because that's what they are right now. क्या ही खेला उन्होंने, क्या ही खेला. So without any further ado, let's start with the video. Starting में let's start with the squad. तो it's not a strained squad anymore. I think कि Carlo Ancelotti knows his player the very best right now. Middle of the season में there were you can say that he was trying and testing a bit. काफ़ी ज़्यादा ट्राई कर रहा था प्लेयर्स को इधर उधर खिलाने के लिए, and that's why we suffered. That's why we clearly suffered. उस पर भी काफ़ी ज़्यादा क्रिटिक्स पड़े थे. You know कि प्लेयर्स वो प्लेयर्स को जानता नहीं है. He doesn't know where to play, which player, and that's why we weren't getting results. But I think that thing has sort of paid off क्योंकि now it feels like he knows his player the best, the very best, और उसको पता है कि कब कौन सा प्लेयर खिलाना है. And that's what he did. He started Valverde at the right wing position. I was thinking कि maybe Rodrigo start करेगा because we need that sort of pressing, but I completely forgot that we have Federico Valverde in our team, the gem of Real Madrid. भाई क्या खेला है वो. The only position that he hasn't played right now is goalkeeping. It has to be goalkeeping. I mean, defending कर चुका है वो, midfield में तो खेलता ही है, attack में इतना खेल रहा है. There's no area that's left to play apart from the goalkeeping position. अभी तो मैं just shoot कर रहा हूँ, match just खत्म हुआ है, तो I don't think so statistics would be there, but post editing में I'll try to show some heat maps and all. That would be like much better. So yeah, I mean, it's crazy the way he knows his player right now. So हमें कोई ज़्यादा प्रॉब्लम होती नहीं है. That's the main reason we are winning these sort of games. और काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल जाती है. It's all about the numbers right now. Numerical advantage इतना ज़्यादा मिल गया था रियल मैड्रिड को that we were able to manage City very well. उनके मेन थ्रेड्स इफ़ आई कैन रिमेंबर, ड ब्रुयन हो गया, बर्नार्डो हो गया एंड फोर्डन हो गया. सो दे वर नलिफाइड, मैन. ड ब्रुयन तो बहुत बेकार गेम था उसका, बहुत बेकार. सीरियसली कॉमेंटेटर्स वर सेइंग कि माइट बी इंजर्ड एंड ऑल. दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी, बट बहुत बेकार खेला था वो. एंड अपार्ट फ्रॉम देम बर्नार्डो अच्छा खेला था एंड फोर्डन अच्छा खेला था, बट वी आर एबल टू नलिफाई देम. ज़्यादा थ्रेट दिया नहीं उन्होंने जस्ट बिकॉज ऑफ आवर मिडफील्ड. कैसेमीरो huge win for us, huge win. उसकी क्या कहते हैं, he was missing in the last game. काफ़ी ज़्यादा गैप्स छूट रहे थे पीछे. He was clearly missing, but इस गेम में जैसे ही वो आता है we are able to manage that gaps. और उनके मिडफील्ड को तो पूरा ब्लॉक करके रखा था हमने. There was no attack from City at all. All they relied was on crosses या तो long range shooting. Although they were effective, कोर्तुआ ने काफ़ी अच्छे सेव्स निकाले. But yeah, you can get the point. I mean, डिफेंस को लोग बीट कर नहीं पा रहे थे जस्ट बिकॉज ऑफ कैसेमीरो और वल्वार्दे का जो न्यूमेरिकल एडवांटेज था मिडफील्ड में. दैट वाज क्रेजी, मैन, क्रेजी. स्टिल मैंने ज़्यादा मोमेंट्स तो रिकॉर्ड किए नहीं है. आई मीन नोट्स आर ऑल अबाउट माई नोट्स आर ऑल अबाउट रिकॉर्डिंग दो सॉर्ट ऑफ मोमेंट्स टाइम के साथ, बट ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था. इट वॉज एंड टू एंड स्टफ फ्रॉम बोथ द टीम्स. इतना फ्लो में गेम, इतना फास्ट फॉरवर्ड गेम था. आई मीन there was nothing so special to जो मैं ऐसे मेंशन कर पाऊँ, बट
स्टिल जस्ट फॉर द सेक स्टार्टिंग में ड्यूरिंग द 4th minute or 3rd minute I guess, somewhere in between there was a chance created out of nowhere from Real Madrid. और यही पूरी गेम का फ्लो था. रियल मैड्रिड वर क्लियरली बेटर ऑफ द बोथ टीम्स. आई मीन उनका पोजेशन वगैरह आई वोंट से कि वो सब देखो तुम लोग. आई मीन पोजेशन एंड ऑल, इफ़ यू सी दैट थिंग, City has to be the better side, but all that matters are the chances. So Real Madrid were better at that chance creation, the main thing of the game. चांस क्रिएशन उसमें रियल मैड्रिड बहुत बेहतर थी. स्टार्टिंग के मैच में ही आउट ऑफ नोवेयर दे क्रिएटेड अ चांस. क्लियर हेडर था बेंजीमा को और बहुत बड़ी गलती थी फ्रॉम लपोर्ते. और लपोर्ट और डियाज एक दूसरे को देख रहे थे, यू नो, पॉइंटिंग ईच अदर आउट कि भाई तेरी गलती है. बट आई थिंक लपोर्ट की गलती थी उसमें. ही मिसजज द बॉल और बेंजीमा के पास एक क्लियर चांस था टू हेड द बॉल. और थ्रू आउट द गेम ऐसे बहुत सारे चांसेस बने थे दैट वर मिस्ड. आई एम सेइंग ना कि 90 मिनट्स तक आई डोंट थिंक सो वी इवन हैड अ शॉट ऑन टारगेट. सो या दैट्स व्हाट द स्टोरी इज़ ऑल अबाउट. चांसेस मिस किए थे हमने काफ़ी ज़्यादा, बट अभी क्या फ़र्क पड़ता है. there's no point of talking about that right now. इंटेंसिटी वगैरह काफ़ी हाई था दोनों टीम की तरफ से. और ये कौन बोलता रहता है कि मैड्रिड इज़ नॉट फिजिकल, मैड्रिड इज़ नॉट दैट. देखो ज़रा मैच, कितना फिजिकल परफॉर्मेंस, कितना प्रेशर कर रहे हैं वो लोग. आई मीन जस्ट सी द गेम. पता नहीं है कौन बोलता रहता है कि यू नो मैड्रिड लैक्स इन प्रेशर, सिटी हैव दैट सॉर्ट ऑफ एडवांटेज क्योंकि वो ज़्यादा फिजिकल नहीं है, सो दे विल एबल टू प्रेस और बॉल विन कर पाएंगे. बिकॉज सेकेंड हाफ में इट वॉज ऑल मैड्रिड ब्रो. सेकेंड नहीं, एक्स्ट्रा टाइम में इट वॉज ऑल मैड्रिड. सारे सेकेंड बॉल वगैरह सब जीत रहे वो लोग. इवन इन सेकेंड हाफ आई गेस, हाँ सेकेंड हाफ में भी वही था. सो ये चीज़ तो अभी कम्प्लीटली इट्स कैंसल्ड आउट कि मैड्रिड हैज़ नो इंटेंसिटी, मैड्रिड लैक्स फिजिकल प्रेशर. बिकॉज आज का गेम देख लो दोस्त, आज का गेम देख लो. इट्स लाइक इट्स अ स्टेटमेंट विन कि भाई जो भी हमारे क्रिटिक्स थे, यू नो, जो भी हमारे फ्लॉज थे, नॉट फॉल्ट्स, जो भी हमारे फ्लॉज थे, दे आर ऑल कवर्ड अप. अ ह्यूज थैंक्स टू पिंटस, जो हमारे फिजिकल प्लेयर्स की जो फिजिकल एबिलिटीज़ है उनको एकदम से मतलब लेवल अप कर दिया फ्रॉम द लास्ट सीजन. आई मीन लास्ट सीजन तो बहुत बेकार था. सो या ह्यूज थैंक्स टू देम. बहुत बड़ी हेल्प की है उसने हमारी टीम के लिए, यू नो, टू प्ले 90 मिनट्स, फिर एक्स्ट्रा टाइम उतनी ही सेम इंटेंसिटी के साथ. बेंजीमा को देखो PSG की गेम में, चेल्सी की गेम में लंगड़ाता घूम रहा था. सो या दैट स्पीक्स कि हमारी जो फिजिकल एबिलिटीज़ है वो कितनी ज़्यादा बढ़ चुकी है. एंड प्लेयर्स हैव द स्टैमिना, द प्लेयर्स हैव दैट सॉर्ट ऑफ जूस टू गो ऑन एंड विन इन एक्स्ट्रा टाइम. सो अ ह्यूज थैंक्स टू हिम. फिर फर्स्ट हाफ वेंट जस्ट लाइक दैट. एंड टू एंड स्टफ था दोनों टीम की तरफ से. इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा हाई थी और फर्स्ट हाफ कब ख़त्म हो गया मेरे को पता ही नहीं चला. सो फर्स्ट हाफ एंडेड जस्ट लाइक दैट. कुछ अगर रिफ्लेक्ट करना हो ऑन द फर्स्ट हाफ, आई थिंक वलवार्दे वॉज एक्सीलेंट. आई ऑलरेडी टॉक अबाउट द न्यूमेरिकल एडवांटेज जो वलवार्दे दे रहा था इन द मिडफील्ड, ताकि थ्रेट्स लाइक डी ब्रुयने, बर्नार्डो एंड फोडन कुड बी नलिफाइड. और वही हुआ, वो ज़्यादा चांसेस क्रिएट नहीं कर पा रहे थे. Other than that, I mean, intensity दोनों टीम की तरफ से हाई थी. As I've already said, City they were heavily dependent on crosses and long range shots just because हमारा डिफेंस बहुत अच्छा चल रहा था. I mean, मिलिटाओ की तरफ से गलतियाँ हुई थी इस मैच में भी. he made mistakes, but Nacho and Carvajal were excellent covering up his mistakes. So I have no sort of complaints. मिलिटाओ I think confidence की कमी थी, but you know, Carvajal and Nacho, they were excellent bro, they were excellent. Carvajal को भी, I mean, he's sort of rejuvenating in that position क्योंकि बहुत ख़राब चल रहा था उसका सीज़न, इंजरीज वगैरह हो रही थी. बट now he's back at that level, at one of the top right backs in the world. So no complaints about that. फर्स्ट हाफ ऐसे ही ख़त्म हो जाता है. सेकेंड हाफ ऑल्सो स्टार्ट्स इन सिमिलर सॉर्ट ऑफ फैशन. सेम इंटेंसिटी चल रही थी, सेम पेस. कोई किसी भी टीम की तरफ से यू नो यू couldn't see कि this particular team lacks some sort of motivation and all. बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी से गेम चल रही थी एंड मोटिवेशन काफ़ी हाई था फ्रॉम बोथ द साइड्स. कुछ अगर कमी निकालनी हो इन द सेकेंड हाफ, सो वी डिड सी विंटेज 2018-19 वाला विनीशियस फिनिशिंग में तो क्या ही बोलूँ.
ग्लिम्स था, मतलब ग्लिम्स मिल रहे थे हमको विंटेज विनीशियस के 2018-19 वाला, जो मिस किया उसने, माय गॉड कितने सारे चांसेस। ही वाज डूइंग एवरीथिंग परफेक्ट एंड तक, और एंड लास्ट मोमेंट पे ही वाज लूजिंग हिज टच, लास्ट मोमेंट पे ही वाज लूजिंग हिज टच मैन। और काफ़ी ओपन अपॉर्चुनिटीज़ भी उसने मिस करी। तो या वी डिड गेट सम ग्लिम्स ऑफ विंटेज विनीशियस। अपार्ट फ्रॉम दैट सेकेंड हाफ ऑलमोस्ट सेम था फ्रॉम द फर्स्ट हाफ, there was no much big of a difference, but if I do have to point out some difference, so it will be some sort of changes in our tactics. I mean, first half में हम थोड़ा पीछे खेल रहे थे, we are allowing City to have possession, we are allowing City to be in our half and try and create more chances, but second half में it changed. We started to win more balls in their half, second balls जिसे कहते हैं, तो वी स्टार्टेड टू विन मोर ऑफ दैट, और हम काफ़ी ज़्यादा प्लेयर्स आगे कमिट कर रहे थे. नाउ आई नो इट्स अ ह्यूज रिस्क बिकॉज कंसिडरिंग द पेस दैट सिटी हैज़ इन देयर अटैक, मतलब हमारे लिए तो काफ़ी ज़्यादा रिस्की था. बट यू नो इट्स द प्रोवर्ब दैट गोज विथ हाई रिस्क यू गेट हाई रिवॉर्ड्स. रिस्क लेना ही पड़ेगा टू गेट हाई रिवॉर्ड्स. देर इज़ नो अदर ऑप्शन. यू विल हैव टू टेक risks in order to achieve what you really want to do. So उसके लिए मैड्रिड ने रिस्क लिया and it paid off in the later half or the extra time, because हमने गोल खाया, City did score a goal, और इसी की वजह से हुआ because we had a lot of players up front. पीछे players कम पड़ गए थे and they got a chance to attack. Open space था and it was a great finish. It was a great finish from Mahrez. I mean, I like that guy. बहुत अच्छा प्लेयर है. एंड या कोर्तुआ हैड नो चांस. इवन काफ़ी क्लोज वो खड़ा था गोल के, जहाँ पे मतलब मारेज ने शॉट मारा था, बट ही कुडंट डू एनीथिंग अबाउट दैट शॉट. इतना पेसी शॉट मारा था मारेज ने, सो देयर वाज नो चांस. सो दैट्स व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट. विथ हाई रिस्क you have a higher chance of getting higher rewards, but you are vulnerable at the back. वही हुआ, गोल खाया हमने. बट उसी गोल के बाद जैसा मैंने अपने पिछले वीडियोस में बोला हुआ है, that we need other teams to score against us, only then we understand the true meaning of a game. और वही हुआ. and Carlo Ancelotti again with his substitutions changed the game. कामाविंगा आता है, रोड्रिगो आता है, and it changed the game. रोड्रिगो 2 मिनट में 2 गोल मार गया, if I'm not wrong. 2 मिनट में 2 गोल मार गया वो. कामाविंगा was excellent throughout the game. सेकेंड हाफ में जब वो आया, थ्रू आउट द गेम एक्स्ट्रा टाइम तक ही वॉज एक्सीलेंट. जो भी 3 गोल मैड्रिड के पड़े, तीनों में उसका हैवी इन्वॉल्वमेंट था. और रोड्रिगो के बारे में तो क्या ही बोलूँ मैं. ही इज़ मोर ऑफ अ चीट कोड फॉर अस राइट नाउ. एंसेलोटी जब भी उसको बुलाता है, वेदर ही स्टार्ट्स, वेदर ही कम्स ऑन एज अ सब, ही ऑलवेज मेक्स अ डिफरेंस. जो चीज़ विनी वॉज लैकिंग, ही डिड ऑल ऑफ दैट सिंगल हैंडेडली. 2 मिनट में बंदा 2 गोल मार गया. What's a better super sub for you? What's a better super sub for you? I mean, he changed the game. और Madrid जीत गए. That's how we got the win. So it's not just about our starting 11. It's also about the bench. काफ़ी अच्छे players हमारे पास पड़े. It's all about the trust that Ancelotti has, और the knowledge that he has about the players right now. उसको पता है किस टाइम पे कौन से प्लेयर को खिलाना है, and the player makes the difference. So I don't think so there's any complaint about Ancelotti from this match. I think he was perfect with his tactics, or he clearly overthrew Pep in terms of tactics. You might have wondered कि यार Pep Guardiola is the genius of tactics. He can do everything. He has done before at Bernabeu. He'll do it again. But no man. No bald manager is Zidane. It's out of context, but yeah, it's the truth. It's the fact. No bald manager is Zidane. Or talking about Carlo Ancelotti, he clearly overshadowed Pep's tactics, because Madrid were clearly the better side in both the halves, and extra time में तो आपको पता ही है क्या हुआ. So yeah, that's how we won the game. Players make the difference. Or the way we are winning these sort of games, I mean, I have a very good hope right now that the Champions League trophy will be ours. मतलब अब क्या ही बचा है यार. There's nothing to see. We weren't meant to win against PSG. We weren't meant to win against Chelsea or even City for that matter. But हम जीत गए.
इससे ज़्यादा अब क्या चाहिए देखने को. वी आर गोइंग टू पेरिस, वी आर गोना फेस लिवरपूल. लिवरपूल जीत के मतलब वही हरकतें उन्होंने चालू कर दी. वी वांट मैड्रिड टू प्ले, वी वांट मैड्रिड टू प्ले, सो वील प्ले अगेंस्ट यू. कोई फ़र्क नहीं पड़ता. एंड वी विल विन. आई एम टेलिंग यू राइट नाउ, वी आर गोना विन. That's it. I mean, what else to say? इतना perfect match था. I mean, क्या ही बताऊँ मैं. In terms of tactics, both the teams were on point. But just it was about the finishing that was the problem. But it's all done right now. It's all over. Madrid is going to final. Madrid is going to Paris. And Liverpool, let's have a 2018 again.